So, Jai Hind everyone. I hope you are all doing good. And I welcome you back on Haritoshanam UPSC. So, in last class and in last to last class, we have covered till now the southwest monsoon and related anomalies like the El Nino and La Nina. Then after we cover the Modoki of El Nino and La Nina. And now in this particular video, we are going to cover the Indian Ocean dipole. So if we talk about this Indian Ocean dipole, then it is very much clear from the name only that the phenomena, this event is occurring in the Indian Ocean only. If we consider El Nino and La Nina, then these phenomena are very wide and broad. Why? Because they were taking into consideration the Pacific Ocean, the Equatorial Indian Ocean, and so many other areas also. So it's a wider event. But when it comes to the Indian Ocean dipole, then it is only taking into consideration the Indian Ocean. And there only this phenomena is occurring. It is, clearly visible from the very name only. तो क्या है ये? इसमें आप आगे बढ़ते हैं, जो भी हमारा राइटअप है उसको हम रीड करना शुरू करते हैं. बेसिक राइटअप है, ज़्यादा कुछ है नहीं. जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी आई विल गिव. सो वेरिएशन इन सी सरफेस टेम्परेचर. तो जितनी भी ये एनोमली हमने देखी वो सारी की सारी एसएसटी रिलेटेड थी. द सी सरफेस टेम्परेचर एनोमलीज, कि समथिंग इज हैपनिंग इन द सी सरफेस, either it is cooling or it is getting warming, and that cooling and warming only is influencing the Indian Ocean. That's why they have been called the anomalies. So all these phenomena are happening in the sea surface temperature or changes in the sea surface temperature. तो अगर इस पर्टिकुलर इवेंट की बात करें तो ये कहाँ होता है? टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंडियन ओशन. कौन से दो एक्सट्रीम्स हैं वो भी देख लो यहाँ पे. एक तो अरेबियन सी एज अ ईस्टर्न पोल एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन सी एज वेस्टर्न पोल. आई थिंक आई हैव just miswritten here, so let me change it. Eastern Indian Ocean, it is working as eastern pole, and this is working as western. All right, so it is clear now that this portion is working as the Arabian Sea wala portion is working as the western pole, and this Indonesian region wala portion is working as the eastern pole. All right, yeah. तो ये दो एक्सट्रीम्स काम कर रहे हैं. नाउ अफेक्टिंग ओशन एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. तो चेंजेस अकरिंग इन सी सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे एक रीजन दे रखा है ड्यू टू लॉन्ग वेव रेडिएशन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट द मेन रीजन we will talk later when we will be discussing the positive phase of Indian Ocean dipole. All right, तब तक के लिए इसको बस होल्ड करके रखो. Then the third point is IOD driven by temperature difference between two poles of Indian Ocean, Arabian Sea वाला and Eastern Indian Ocean. ये हमने देखी Indonesian Sea. So fourth वाला point is कि three possible scenarios are there in the Indian Ocean dipole: neutral IOD, पॉजिटिव आईओडी, नेगेटिव आईओडी. तो इस न्यूट्रल आईओडी के बारे में हम देखते हैं. तो होता क्या है कि जो वाटर है फ्रॉम पैसिफिक फ्लोज टुवर्ड्स इंडोनेशिया, बिटवीन आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया.
क्या बोल रहे हैं वो कि यहां से ये जो आपका पैसिफिक ओशन है यहाँ पे पूरा, यहाँ से आपका इंडोनेशियन ये जो वाला रीजन है, यहाँ पे जो वार्म वाटर है उसका फ्लो होता है। ठीक, उसका फ्लो होता है आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। और ये जो फ्लो है वाटर हेल्प्स कीप ओशन टेम्परेचर नॉर्मल। हाँ, उस वहां के ओशन टेम्परेचर को ये नॉर्मल रहने में मदद करता है। बट स्टिल ए लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वहां से वार्म वाटर आ रहा है, तो जो लो प्रेशर एरिया है क्रिएट्स हियर, दैट लीड्स टू राइज ऑफ एयर ओवर इंडोनेशियन रीजन। जाहिर सी बात है, जहां पे भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा वहां पे देयर विल बी rise of the air. Huh? That is what is happening here also. And that settles over western part of Indian Ocean. क्या बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है वो वहां पे जाके सेटल कर जाती है, मतलब यहाँ से उठती है और यहाँ जाके सेटल कर जाती है, वो ये कहना चाहता है। लेट मी टेक यू टू दैट पॉइंट। एंड दिस डिसेंडिंग एयर ओनली फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया एज साउथ वेस्ट मानसून, मतलब कि जो एयर यहाँ से उठी और यहाँ पहुंची, यहाँ पे, अब वो यहाँ आ गई है, इस वाले पोर्शन में रीजन में आ गई है, अब वो यूं करके बढ़ना शुरू करेगी एज साउथ वेस्ट मानसून। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन द न्यूट्रल फेज ऑफ इंडियन ओशन डायपोल। हाँ, सो इट इज, आई मीन, वेरी बेसिक। देखो, वी हैव कवर एल नीनो, वी हैव कवर्ड ला नीना, वी हैव कवर्ड साउथ वेस्ट मानसून। सो मेजर portion of the the concept, the major portion of the concept we have already covered, and that's why these events, they will be very easy for us. Why? Because most of the tough portion of the monsoon we have already covered. हाँ, तो they will be easy for us. तो डिसेंडिंग एयर है ओनली, ये किस तरीके की फ्लो करेगी, साउथ वेस्ट मानसून की तरह फ्लो करेगी, जो जैसे कि हम बता चुके थे। तो अब यहाँ पे इसका एक आईओडी के न्यूट्रल फेस का एक डायग्राम देख लीजिए कि ये इंडोनेशियन वाला रीजन है, ये आपका इक्वेटोरियल अफ्रीका वाला रीजन है। तो क्योंकि वहाँ पे वार्म वाटर का फ्लो हो रहा था और यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रखा होता है, तो ये आपकी जो लूप है वो इस तरीके से होता है। बट देर इज नो विंड फ्लो लाइक दिस, no flow of wind like this. And then पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल पे आते हैं। ये थी आपकी नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल की, वो इंडियन ओशन डायपोल की न्यूट्रल फेज जो थी। अब इसमें पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में होता क्या है, देखिए ये आपका डायग्राम। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में क्या हो रहा है कि इस वाले रीजन में, ये जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, यहाँ पे कैसे ना कैसे करके कोल्ड पूल क्रिएट हो रहा है, और कोल्ड पूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और जो आपका जो अफ्रीका वाला रीजन है, जो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे वार्म पूल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे कोल्ड पूल जो है वो क्रिएट हो क्यों रहा है, दिस इज द क्वेश्चन विच अराइजेस हियर, दैट व्हाई दिस एरिया इज गेटिंग कूल। तो होता क्या है ड्यूरिंग दिस मॉनसून पीरियड कि, और जब ये पर्टिकुलर इवेंट होने को होता है, तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एनोमली इज बीइंग जनरेटेड हियर, वो ये है कि जो हमारी जो ईस्टर्ली विंड्स हैं, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, they get intensify और strengthen, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जबकि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो होता क्या है कि देयर ऑकर्स द ओशन सरफेस शिफ्ट। ओशन सरफेस शिफ्ट मतलब
कि यहाँ का जो, क्योंकि ईस्टर्ली विंड से तो ये डायरेक्शन होगी उनकी, तो यहाँ का जो वाटर है, हम्म, यहाँ का जो वाटर है वो डिस्प्लेस करती है टुवर्ड्स दी वेस्ट इंडियन ओशन वाला रीजन। तो जब वो वाटर आपके 0 डिग्री इक्वेटर जो है आपका, वहां पे जो ट्रेवल करती है, उस पर ट्रेवल करते करते इट गेट्स वार्म, और दिस इक्वेटोरियल अफ्रीका वाला रीजन जो है, यहाँ पे वो पाइल अप हो जाती है जाके, एंड इट इज ऑलरेडी वार्म, दैट लीड्स टू द वार्म पूल देयर। और क्योंकि यहां से वाटर डिस्प्लेस हो चुका है, तो यहाँ के वाटर को कंपनसेट करने के लिए कहीं से वाटर तो आएगा। वो वाटर कहां से आता है? नीचे से। और इस नीचे से आने को क्या बोलते हैं? अपवेलिंग। ये अपवेलिंग किसकी होगी? कोल्ड करंट की। Why? Because it is ascending. That upwelling is happening from the deep of the ocean, and deep of the ocean is very cold. तो वो जो करंट ऊपर अपवेल कर रहा है, उस अपवेल्ड करंट को हम क्या बोल सकते हैं? नाम दे देते हैं सुमात्रा और जावा कोस्टल कोस्टल करंट, ये हम उसको नाम दे देते हैं कि दिस करंट अराइजेस एंड fill the gap that was created here because of the easterly trade। तो जब कोल्ड वाटर यहाँ पे अराइज हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज दिस एरिया विल गेट कोल्ड, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है इंडियन ओशन पॉजिटिव फेज का, इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव फेज का, कि ये एरिया कोल्ड हो जाता है और ये एरिया वार्म हो जाता है। बस इतनी सी कंडीशन है। अब ये मॉनसून को कैसे इंपैक्ट करता है? मॉनसून के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये इसका हमें देखना है। तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट, और फिर हम वो वाला पोर्शन भी देखते हैं कि मॉनसून के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। हम्म, इंपैक्ट होगा मॉनसून। तो मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट ये पड़ रहा होता है कि हमें पता है यहाँ पे सोमालियन जेट स्ट्रीम काम कर रही है। हाँ, सोमालियन जेट स्ट्रीम काम कर रही है। किस तरीके से काम कर रही है भाई? जब मॉनसून वाला रीजन है, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका नॉर्दर्न पोर्शन है, वहाँ पे समर हो रखी है, और जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे विंटर हो रखी है। मैस्करेनीज हाई वाला यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर है। तो ये वाली जो सेल है सोमालियन जेट स्ट्रीम वाली, ये तो कंटिन्यूसली चली रही है। हाँ, ये चल रही है कि नहीं चल रही है? यस, इट इज कॉन्स्टेंटली, इट इज परपेचुअली गोइंग। तो अब होता क्या है ये देखो, कि इस क्रिएटेड इंडियन ओशन डायपोल जो पॉजिटिव फेस है, उससे होता क्या है, वो इम्पैक्ट कैसे कर रही है? ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से उठ रही है वो, यूं आ रही है, यूं जा रही है, एंड इट इज डिसेंडिंग हियर एंड देन इट इज कमिंग लाइक हियर, इस तरीके से। तो होता क्या है कि भाई यहाँ पे जो वार्म पूल है वो क्रिएट हो गया। वार्म पूल की वजह से जो इवेपोरेशन होगा वाटर का, वो हाई होगा। हाँ, जब वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हाँ, तो जो वाटर वेपर है वो ज्यादा अवेलेबल होंगी, और जब वो ज्यादा अवेलेबल होगी, तो जो विंड यहाँ से ट्रेवल करके जा रही है,
वो उस मॉइस्चर को कैप्चर कर लेंगी और उतने ही मॉइस्चर को लेके आगे बढ़ेंगी, और जैसे ही वो वेस्टर्न घाट पे जाके असेंड करती हैं तो बहुत हैवी रेनफॉल कॉज करेंगी देन द नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून दैट वाज करेंगे। हाँ, तो इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव फेज की वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू हैवी रेनफॉल। हुआ किस वजह से था कि यहाँ पे वार्म पूल क्रिएट हो गया था, यहाँ पे कोल्ड पूल क्रिएट हो रखा था, ऐसा ही तो हुआ। तो यही तो एनोमली थी इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव फेज की, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल कॉज होती है। समझ में आ गया ये आपको, बस इतना सही मैकेनिज्म। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं बेसिक उनको रीड कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव फेज के इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है कि इन दिस फेज winds flow anomalously from east to west, है ना, the winds creating anomaly, that is they are getting strengthened, and that is displacing water from the Indian Ocean region to the equatorial region, equatorial African region, huh? In Indian Ocean. So this flow cooling of southeast Indian Ocean, this flow lead to the cooling of southeast Indian Ocean and warming of western Indian Ocean, and all this is good for Indian monsoon, as more evaporation occurs in Arabian Sea gives more moisture to the monsoon, and it will give very good amount of rainfall over the Indian subcontinent। ठीक है, तो हमारी ये क्या थी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द वाटर। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल वो डायपोल मूवमेंट वाला आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, 12th वाला। ओके, so positive phase of Indian Ocean dipole। Now the negative Indian Ocean dipole, it is exactly opposite to positive phase, just the mirror image ही है ये उसकी। कैसे कि यहाँ पे जो वार्म पूल है वो साउथ ईस्ट वाले रीजन में क्रिएट हो रखा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं, when this event is occurring, when this particular phase of Indian Ocean dipole is occurring, जो ट्रेड विंड्स हैं वो वीक हो जाती है और रिवर्स भी होती है, somehow it is occurring, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर था वो हो नहीं पाता। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मतलब जो इधर हो रहा था वो हो नहीं पाता, इसकी वजह से यहाँ पानी जो था वो ऑलरेडी रहता है, और जो अपवेलिंग है किसी भी कोल्ड करंट की वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये रीजन दे डू नॉट, दिस पर्टिकुलर रीजन डू नॉट कम अंडर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाटर था जिस, और वो इंडियन ओशन रीजन से भी आ रखा होता है, वार्म वाटर आ रहा होता है, तो यहाँ पे वार्म पूल क्रिएट हो जाता है, मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और यहाँ पे कंपेरेटिवली कूल जो पूल रीजन है वो क्रिएट हो रखा होता है। अब जब तो हमारी साइकिल हो गई ये वाली नेगेटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डायपोल, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज नो अपवेलिंग, जो ट्रेड विंड है वो वीक हो रही है, रिवर्स हो गई है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है टुवर्ड्स द वेस्ट इंडियन ओशन। जो दूसरा एक्सट्रीम था हमारा इंडियन ओशन डायपोल में, वहां तक नहीं आ पा रहा है वो, जिसकी वजह से दिस एनोमलीज इज बीइंग क्रिएटेड। हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब अपना कोल्ड पूल जो है वो जनरेट हो गया। अब इसका इम्पैक्ट मानसून के ऊपर क्या होता है, वो क्या होगा कि भाई हमारी ये सोमालियन जेट स्ट्रीम जो है वो उस तरीके से काम कर रही है, हाँ, इट इज अराइजिंग फ्रॉम हेयर, टर्निंग टुवर्ड्स हेयर, देन डिसेंडिंग ओवर द मैस्करेनियस हाई, एंड देन गोइंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन एज साउथ वेस्ट मानसून। तो बच्चे यहाँ पे जब कोल्ड पूल रीजन क्रिएट हो रखा है तो जो एवेपोरेशन है वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि देयर विल बी नो कन्वेक्शन ऑफ एयर। जब कोई कन्वेक्शन ऑफ एयर ही नहीं होगा तो जो एयर मतलब राइज नहीं कर रही है, जब राइज नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर है इट विल बी इन नॉट इन दैट अमाउंट कि बहुत हैवी रेनफॉल कॉज कर सके। तो इसका मानसून के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड होगा।
तो इसको हम पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हियर अरेबियन सी बिकम्स मोर कूलर एंड लेस क्लाउडी एंड रीजन अराउंड इंडोनेशियन मोर वार्मर, देयरफॉर जो सरफेस विंड्स होती हैं ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू east, and this flow promote good rainfall over Indonesian and drought-like condition over India. It is also associated with more cyclogenesis in Bay of Bengal and अंडमान सी रीजन। तो साइक्लोजेनेसिस कंडीशन है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी रीजन में इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ऑलरेडी वार्म हो रखा है। हाँ, तो जब वो वार्म हो रखा है इंडियन ओशन वाला पोर्शन, this वाला रीजन, this whole region is also getting warm, is also warm water flowing here। तो जो फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स कि भाई 24 डिग्री सेल्सियस वाला जो एक अराउंड जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, फेवरेबल कंडीशंस, वो सब वहाँ पे ऑलरेडी द ह्यूमिडिटी वाला पोर्शन, वाटर वेपर्स, वो सब वहाँ पे फुलफिल हो रही होती है। दैट्स वाई the there is increase in the cyclogenesis process when there is the occurrence of the what phase of the negative phase of Indian Ocean dipole in the Indian Ocean. All right. So with this, both of our topic of the topic of our Indian Ocean dipole, it's all three phases. It is covered, and there is one more topic left with us, which is the Madden-Junior oscillation. In the next video, I'll cover that particular topic also. So thanks a lot for interestingly listening this lecture and sitting with me, and I hope that you will do your preparation well. Thanks a lot.